بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ آج میں بہت خوش تھی۔ میں نے جسے چاہا وہ مجھے مل گیا، میری محبت مجھے مل گئی۔ رخصتی ہو چکی تھی، سہاگ کا لباس پہنے کمرے میں بیٹھی احسن کا انتظار کر رہی تھی۔ نیچے احسن کو کزنس نے گھیر رکھا تھا، وہ پیسے کا مطالبہ کر رہی تھیں، ان کے شور کی آوازیں اوپر تک آ رہی تھیں۔ میں بھی اپنی خوشیوں کو انجوائے کر ہی رہی تھی جب میرے کمرے کے باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش آدمی وہاں سے نکلا۔ میں اسے دیکھ کر شدید ڈر گئی۔ ڈر کا یہ عالم تھا کہ میرے منہ سے چیخ تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ آدمی تیزی سے میری طرف بڑھا، میں اٹھ کر بھاگنے لگی تو اس نے مجھے پکڑ لیا اور میرے منہ پر رومال رکھ دیا۔ پھر مجھے نہیں علم کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے ہوش آیا تو ایک کمرے میں قید تھی جسے ہر طرف پھولوں سے سجایا گیا تھا، مگر اس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ میں نے اٹھتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ ادھر میرا خاوند احسن جیسے ہی اوپر آیا، میں کمرے سے غائب تھی۔ میرا دوپٹہ دوسری عروسی چیزوں کے ساتھ بیڈ کے اوپر بکھرا پڑا تھا۔ احسن نے جیسے ہی کھڑکی پہ پاس آ کر دیکھا، کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہاں ایک رسی لٹک رہی تھی۔ احسن کو سمجھنے میں ایک لمحے کی دیر نہیں لگی، اسے معلوم ہو گیا کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا نیچے اترا اور نیچے جاتے ہی شور مچا دیا کہ زارا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ سارے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ فوراً ہی یہ خبر میرے گھر والوں تک پہنچ گئی، وہ بھی احسن کے کمرے تک آ گئے۔ سب کا شک میری نند کے شوہر پر تھا۔ میری نند کا شوہر میرا کلاس فیلو تھا، یونیورسٹی کے زمانے سے ہی مجھے پسند کرتا تھا۔ میری نند نے جب سب کی سوالیہ نظروں کا رخ اس کی جانب دیکھا تو جلدی سے گاڑی نکالی اور اپنے گھر چلی گئی۔ اس کا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو فون کیا مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ اس وجہ سے اس کا شک اور بھی مضبوط ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ گھر آ گیا۔ اس کے گھر آتے ہی میری نند نے اس پر چڑھائی کر دی۔ وہ لاکھ قسمیں کھاتا رہا، مجھ سے کہنے لگی، بتاؤ کہاں چھپایا ہے تم نے اپنی معشوقہ کو؟ اس بات کو لے کر دونوں کے بیچ میں لڑائی شروع ہو گئی۔ دوسری طرف احسن گاڑی نکال کر ساری رات مجھے ڈھونڈتا رہا مگر میں اسے نہ ملی۔ وہ تھک ہار کر صبح کے وقت گھر آیا۔ خوشیوں والے گھر میں ماتم کا سماں ہو گیا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے سارے ہی مہمان چلے گئے تھے۔ احسن کی سوتیلی ماں بہت خوش تھی کیونکہ وہ احسن کی شادی اپنی بھتیجی سے کروانا چاہتی تھی۔ ایسا چاہنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ اکلوتا تھا اور ساری جائیداد کا مالک تھا۔ اسے پانے کے لیے یا تو وہ اسے راستے سے ہٹا دیتی یا اپنے ہاتھوں میں کر لیتی۔ ہاتھوں میں کر لینا ذرا آسان کام تھا، سو وہ دعا کر رہی تھی کہ زارا کبھی نہ ملے، اگر ملے بھی تو حسن اسے طلاق دے دے تاکہ وہ اپنی بھانجی کی شادی احسن سے کروا سکے۔ جیسے ہی سب لوگ چلے گئے، حسن کی ماں اسے تسلیاں دینے پہنچ گئی۔ حسن کی ماں ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے تھی اور اسے دیکھتے ہی رونا شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں رات سے زارا کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں، خدا کرے وہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ حسن ان لوگوں کی چالوں سے بے نیاز ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ میرے گھر والے ابھی حسن کے گھر میں ہی تھے، وہ رات سے یہی انتظار کر رہے تھے۔ جس نے بھی مجھے اغوا کیا وہ پیسوں کے لیے ضرور کال کرے گا، مگر صبح تک کوئی کال موصول نہیں ہوئی۔ احسن نے میرے ابو سے پوچھا، انکل کیا آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی یا زارا سے کوئی اور لڑکا شادی کرنا چاہتا تھا؟ میرے ابو نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اول تو ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، اور اگر زارا کسی سے شادی کرنا چاہتی یا کوئی ایسا مسئلہ تھا تو وہ ہمیں ضرور آگاہ کرتی۔ ان کا یہ یقین جائز تھا، میں ابو سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ میرے اغوا کا سارا معاملہ نند کے شوہر کے سر پر ڈال دیا گیا۔ اس نے لاکھ انکار کیا مگر کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ادھر مجھے انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا گیا۔ جب میں نیم بے ہوشی میں ہوتی کوئی نقاب پوش آدمی میرے کمرے میں آتا
मैं उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि मैं मुकम्मल होश में नहीं होती थी। उसके कमरे में आने से पहले मुझे इंजेक्शन लगा दिया जाता। मुझे हर वक्त नींद सी आई रहती। होश आता तो मेरे कमरे में कोई न होता, दरवाज़ा बाहर से बंद होता। एक औरत मेरे कमरे में मुझे खाना देने जाती थी। जैसे ही वो खाना देने आती, मैं उस पर सवालों की बौछार कर देती। मैंने उससे बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मगर वो हर बार यही कहती कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकती। बार बार उससे मैं यही पूछती कि मुझे ये तो बता दो, मुझे अगवा करने वाले लोग कौन हैं। वो कहती मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जो हुक्म मिलता है मैं वही करती हूँ। मेरी नंद अपने शौहर से लड़ झगड़ कर घर जा चुकी थी। दोनों माँ बेटियाँ मेरे खिलाफ नए नए मंसूबे बनाने लगीं। वो दोनों ही एहसन पर जोर देने लगीं कि तुम ज़ारा का तलाकनामा इसके बाप के घर भिजवा दो, हम तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह कर देंगे। ज़ारा का किरदार तो पहले ही मशकूक था, उम्मीद है वो खुद किसी के साथ भाग गई होगी। अब तो ऐसी बीवी को पास रखने का कोई फ़ायदा नहीं। मगर एहसन ने दोनों को डांट कर चुप करवा दिया। अगले रोज़ वही औरत दोबारा मेरे कमरे में आई। कुछ नकाबपोश लोग और भी उसके साथ थे। फिर इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया और मुझे गाड़ी में बिठा दिया। ये लोग मुझे मेरे घर के सामने फेंक कर चले गए। जब मुझे होश आया, मैं एहसन के कमरे में थी, जहाँ मेरे पास एहसन और उसकी माँ खड़े थे। मुझे इस वाक़े के बारे में कुछ पता नहीं था। मारे खौफ के बेहोश हो गई। मेरे घर वालों को मेरे आने की इत्तला कर दी गई। आपी और अब्बू लोग जल्दी से मेरे पास आ गए। फिर जैसे ही मुझे होश आया, मैं आपी के गले लगकर रोना शुरू हो गई। इस दौरान एहसन की माँ मुझसे तरह तरह के सवालात पूछने लगी। अब्बू और एहसन ने उसे डांट कर चुप करवा दिया। मेरी हालत संभल नहीं रही थी, बार बार बेहोश हो जाती। सारी सूरत हाल को देखते हुए अब्बू ने मुझे अपने साथ ले जाने के लिए एहसन से बात की। वो रजामंद हो गए। यूँ मैं अपने घर आ गई। मैंने अम्मी को सारी सूरत हाल बता दी। मैं चाहती थी कि जिन लोगों ने मुझे अगवा किया वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं, जबकि एहसन ऐसा नहीं चाहते थे। हर बार कहते कि जो होना था वो हो गया। मैं नहीं चाहता कि बात मज़ीद बढ़े और दूसरे लोगों को भी इस बात का पता चले, जबकि मैं इन लोगों को पकड़वाने पर बज़िद थी। एहसन रोज़ मुझसे मिलने आ जाते। वो थोड़ी देर मेरे पास बैठते और फिर चले जाते। मेरी सास और नंद एहसन के कान भरने में मसरूफ़ थीं। वो मुसलसल कोशिश में थी कि एहसन किसी तरह मुझे तलाक दे दे, मगर एहसन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और फिर एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। आप ही मुझे जल्दी से हस्पताल ले गई। मेरा चेकअप हुआ तो मुझे बताया गया कि मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप ही और मैं एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगी। इन्होंने समझाया कि तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। अब्बू से कहो वो आज ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आए। मैंने आप ही की बात पर अमल किया। अब्बू मुझे एहसन के घर छोड़ गए। एहसन ने मुझे कहा जब तक तुम अच्छी तरह ठीक नहीं हो जाती तुम्हें अपने अब्बू के घर ही रहना था। तुम यहाँ अकेली कमरे में पड़ी रहोगी तो बीमार हो जाओगी। मैंने अब्बू के घर जाने से इनकार कर दिया। अगले दिन भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने आपी को यहाँ बुला लिया, मगर मेरी सास को शक हो गया। जिस दिन आपी मुझे हस्पताल लेकर गई उस दिन मेरी सास ने हम दोनों को बातें करते सुन लिया। अब वो मेरी निगरानी करने लगी। सास ने डॉक्टर का पता चलाया और उसके पास जाकर मेरी रिपोर्ट हासिल कर ली। उसे पता चल गया कि मैं उम्मीद से हूँ। ये खबर उसने पूरे घर में फैला दी। जब एहसन ने मुझसे पूछा, मैंने कहा मेरी तबीयत पहले ही ख़राब थी, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। इधर मेरी सास ने हसन को भड़काना शुरू कर दिया कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, मगर एहसन अपने सौतेली माँ की बातों में नहीं आया। इसने अपनी माँ से कहा ये बच्चा मेरा ही है। लेकिन एहसन की माँ फिर भी पास नहीं आई। मेरी जासूसी करने के लिए एक मुलाजिमा साथ मिला ली। मुझे वापस आए अभी एक हफ्ता ही हुआ था। मेरे अब्बू घर से गायब हो गए। इन्हें सब ढूंढने में लग गए। एहसन भी सारा दिन इन्हें ढूंढने में लगा रहता, मगर वो कहीं नहीं मिले। हमने शहर के सारे अस्पतालों में, थानों में, मुर्दा खानों में, हर जगह उन्हें ढूंढ लिया, मगर वो नहीं मिले। मैं बहुत परेशान थी कि पहले मुझे अगवा किया और अब अब्बू अचानक घर से गायब हो गए। एहसन की माँ रोज़ तंजिया बातें करती और मुझे कहती पहले बेटी के गायब होने का ड्रामा रचाया और अब बाप भी वही ड्रामा कर रहा है। तीसरे दिन मेरी नंद का शौहर मेरे अब्बू को ढूंढकर घर ले आया।
सब ने उससे पूछा, मगर उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। मैं अब्बू से मिलने अस्पताल पहुंची तो हसन पहले ही अब्बू के कमरे में मौजूद थे। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने हसन से कहा, अगर आपने यहाँ आना था तो मुझे भी साथ ले आते। एहसन कुछ नहीं बोले और उठकर वहाँ से चले गए। चंद दिन के बाद अब्बू को घर में ले आया गया। मैं आजकल अब्बू के साथ रह रही थी। मुझे रात को सोते हुए अब्बू के कमरे से एक दिन किसी के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें सुनाई दी। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें मध्यम हो गईं। मैं उठकर अब्बू के कमरे में आई। एहसन अब्बू के पास बैठे थे। मैंने एहसन से कहा, आप आने से पहले मुझे बता तो देते। अगर मैं न जागती तो आप मुझसे मिले बिना ही यहाँ से चले जाते। एहसन ने कहा, मैं घर के सामने से ही गुजर रहा था। मैंने कहा, जाते जाते अंकल की तबीयत भी पूछता जाऊं। मगर मुझे एहसन की हरकतें कुछ मशकूक लग रही थीं। मैंने महसूस किया जैसे अब्बू की आंखों में आंसू थे। मैंने अब्बू से जानने की कोशिश की, मगर अब्बू ने मुझे कुछ नहीं बताया। जैसे ही एहसन घर आता, मैं चुपके से दरवाजे के पास आकर अपने कान लगा देती। एक दिन अब्बू और एहसन बातें कर रहे थे। मैंने इनकी सारी बातें सुन ली। अब्बू एहसन से माफ़ी मांग रहे थे, जबकि एहसन कह रहा था, जितनी तकलीफ़ मैंने उठाई, बदले में उतनी ही तकलीफ़ में आपको देखना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं शॉक्ड रह गई और बोझल कदमों के साथ अपने कमरे में आ गई। मैं एहसन के जाने का इंतज़ार करने लगी। एहसन जैसे ही घर से निकला, मैं फ़ौरन अब्बू के कमरे में आ गई। मैंने अब्बू से कहा, अब्बू आप मुझे सब कुछ बता दें। एहसन आपको क्यों ब्लैकमेल कर रहा है? अब्बू ने रोना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। मेरी गलती की सज़ा तुझे मिल रही है। मैंने अब्बू के हाथ थाम लिए, इन्हें हौसला दिया कि कुछ नहीं होगा। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब्बू कहने लगे, कॉलेज में एहसन की माँ मेरी क्लास फेलो थी। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर एहसन की माँ का रिश्ता अमीर फैमिली से आ गया। उसकी मोहब्बत तो शायद मेरा साथ देती, मगर उसके घर वालों ने उसकी एक न मानी और उसकी वहाँ शादी कर दी। मैं इस बात को कभी भुला नहीं सकता था। मैं अगले चंद सालों में भी यही गम मनाता रहा। आज मैंने अभी शादी नहीं की थी। मुझे एक दिन एहसन की माँ का फ़ोन आ गया। उसने मुझसे कहा, मेरे बेटे को होम ट्यूशन दे दो, तुम तो बहुत ज़हीन हो। मैं एहसन को पढ़ाने इन लोगों के घर चला गया। मेरा सामना एहसन की माँ से भी होना शुरू हो गया। मैं तो उससे पहले से ही मोहब्बत करता था, मगर एहसन की माँ अपने शौहर के साथ मुखलिस थी। एहसन का बाप एक शक्की मिजाज आदमी था। एहसन की माँ उससे बहुत डरती थी। मुझसे तो किसी के सामने बात तक न करती। मैं उसे हमेशा कहता, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझ जैसा बहादुर शख्स कभी तुम्हें बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा। तभी वो मेरी जुर्रतमंदाना बातों में आ गई और एक दिन मुझसे बोली, चलो ठीक है, तुमने मुझसे जो बात भी करनी हुई, आज रात को आ जाना। बच्चे सो रहे होंगे, वैसे भी चांद रात है, किसी को शक नहीं होगा। अगर कोई आया भी तो मैं कह दूंगी कि तुम सौगात लाए थे। आखिर अब तुम्हारा भी इस घर से कोई ना कोई ताल्लुक तो है। एहसन की माँ ने कहा था, मगर मैं जान गया था कि वो अब भी बौखलाई हुई है, जबकि मैं उसे चांद रात पर कोई ख़ास तोहफा देना चाहता था। मैंने उसकी पसंद की चूड़ियाँ पैक करवाईं और इन लोगों के घर की तरफ चल दिया। एहसन की माँ ने मुझे कहा था कि उसका शौहर आज रात घर पर नहीं होगा। वो ईद से एक दिन पहले गांव में अपनी माँ से मिलने जाता है और फिर सुबह सुबह ईद वगैरह वहीं पढ़ता है और फिर वापस शहर आ जाता है। मैं भी इसी गुमान पर वहाँ पहुँचा कि आज एहसन का बाप घर पर नहीं होगा। एहसन की माँ ने मुझे कबल उस वक्त भी नहीं बताया था, वरना शायद मैं वहाँ न जाता। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, सहन में चारपाइयाँ बिछी हुई थी। एहसन की माँ ने कहा था कि मैं आखिरी चारपाई के पास खड़ी होकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, फिर दीवार की दूसरी तरफ आ जाऊँगी। तुमने मुझे जो कुछ भी देना हो या बात करनी हो वहीं कर लेना। मगर उस बेवकूफ़ औरत को पता नहीं था कि उसके शौहर का इरादा कभी भी बदल सकता है, और उसने मुझे आगाह भी नहीं किया। बस फिर क्या था, रुस्वा होकर वहाँ से निकला। इस बात की खबर सारे मोहल्ले को हो गई। उस शख्स ने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया और उससे बच्चा भी छीन लिया। मैंने एहसन की माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे ना मिली। मेरे घर वालों ने मुझ पर दबाव डाला और मेरी शादी कर दी। बाकी लोगों को तो नहीं पता था कि एहसन की माँ कहाँ गई है, मगर एहसन मुझे अच्छी तरह जानता था। शायद वो पहचान गया था,
तभी वो मुझसे नफरत करने लगा। एहसन अपनी और अपनी माँ के साथ होने वाली ज़्यादतियों का बदला मुझसे लेना चाहता था, इसीलिए उसने तुम्हें एक मंसूबाबंदी के तहत मोहब्बत के जाल में फंसाया। शादी की रात उसने ही तुम्हें अगवा किया और वहाँ बदसलूकी करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा अपना ही शौहर था। सारी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने बीच चौराहे में खड़ा कर दिया हो। मैं सोचने लगी, काश मुझे एहसन की असलियत का पहले पता चल जाता। ये सोचकर मेरा सर फटा जा रहा था। एहसन ही था जिसने मुझे अगवा करवाया और बेहद मासूमियत से मेरे साथ मोहब्बत का ड्रामा रचाया। मुझे ढूंढने के लिए मारा मारा फिरता रहा। मैं इतने माह तक अजियत में रही, एहसन से अपना बच्चा छुपाती रही कि कहीं उसे पता न चल जाए। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं एहसन का गला अपने हाथों से घोंट दूं। मैं अब्बू से कहने लगी, मैं एहसन से तलाक ले लूंगी, मगर अब्बू ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। सारी रात में रोती रही। जो मोहब्बत के मिल जाने पर मैं खुशियां मना रही थी, वो मेरी मोहब्बत नहीं थी, मेरे लिए बिछाया गया एक जाल था जिसमें मैं बुरी तरह फंस गई थी। एक पल भी एहसन के साथ नहीं रहना चाहती थी, जिसने मेरी इज्जत की भी परवाह न की और मुझे पूरे ख़ानदान में बदनाम कर दिया। एहसन की कॉल आ रही थी, मैंने कॉल रिसीव नहीं की। जब मुसलसल चौथी बार बेल हुई तो मैंने गुस्से से फ़ोन उठाया। अभी मैं कुछ कहने ही वाली थी जब एहसन ने घबराए हुए अंदाज में मुझे बताया कि मुझ पर कातिलाना हमला हुआ है। मैं बच गया हूँ, मगर मुझ पर हमला करने वाले भाग गए हैं। मैंने बगैर कुछ कहे सोचा ये भी इसका नया ड्रामा होगा और फ़ोन बंद कर दिया। मैं इस मामले से कतई लाताल्लुक़ रहना चाहती थी, मगर उसकी बीवी थी, सो उसकी एक एक खबर मुझ तक पहुंचती जाती। मुजरिमों ने जो भी बयान दिया उसके मुताबिक एहसन की सौतेली माँ ने ही एहसन पर कातिलाना हमला करवाया। पूरे घर पर कब्जा करना उसका मकसद था। और तब मेरा सामना पहली बार एहसन के बाप से हुआ, जो मसरूफियत का बहाना बनाकर शादी से भी दूर रह रहे थे। एहसन के वालिद ने भी एक लम्हा ज़ाया किए बिना अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दी। मेरे अब्बू ने जब इन्हें बताया कि एहसन की माँ बेकसूर थी, आपने फिर भी इसे सज़ा दी, तो वो अपनी गलती पर पशेमां हो गए। एहसन और इसके बाप ने मुझसे भी माफ़ी मांगी, मगर मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। वो किसी तरह भी माफ़ी के काबिल नहीं था। अब्बू ने मुझे बहुत समझाया कि मैं एहसन को माफ़ कर दूं, मगर मैं उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। शायद आपको लगे कि उसे माफ़ कर देना बेहतर था, मगर मैं इसे दुरुस्त नहीं समझती। जैसे ही मेरा बच्चा पैदा हुआ, मैं बच्चे को लेकर एहसन की ज़िंदगी से दूर चली गई, ताकि वो इतनी बड़ी हमाकत करने से पहले दोबारा 100 बार सोचे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।